Hello guys, welcome to Crypto Trading Program by Jobaj Learning. My name is Shubham, and before we go ahead and start doing anything, just want to give a quick background of myself. मैं हूं कौन? My name is Shubham. I'm currently part of the Cambridge University ecosystem. I'm part of a blockchain society here at Cambridge. I'm doing my CFAs and all those things builds up my credential on teaching this particular program. Why are we looking for this as a possible investment opportunities for you guys? आप लोग जानते हो कि diversification is one of the very important tool when we look into investing, and that comes by understanding different asset classes. और आपको पता है कुछ सालों में how digital has evolved as a particular asset class in investing, and that is why we are here to give you or equip you to understand every single basics of these crypto trading. Before we go and deep dive any further, would like to give you a further detail about myself. I spent majority of my time working in strategy consulting, talking a lot about finance and what exactly is happening in the digital space. This digital space mein ho kya raha hai and how it links to finance and how exactly you guys can invest and earn money in this thing. So today, let's start with the first particular episode where we start looking into and deep diving the basics of it. कि ये है क्या? हम लोगों ने बहुत जगह सुना है. There has been a lot of concepts revolving around this idea of what exactly are these fancy words. ये fancy words हैं क्या? When we talk about, हर कोई बोलता है blockchain, crypto, bitcoin. That is what we are here today. हम लोग start करेंगे from the very basic understanding what exactly is a blockchain. ये sequence इस हिसाब से decide हुआ है just to make sure you understand the very fundamental of this digital technology which has built in the recent years. So we'll start with understanding what exactly is blockchain. ये technology है क्या? Then we move to the next part, understanding a very basic idea on how this blockchain has the application in terms of crypto. What is crypto? Crypto है क्या? अब इसका blockchain से कैसे link है? And then finally, we start looking into digital currencies such as Bitcoin. Then we talk about how exactly the application of blockchain and crypto is linked to Bitcoin and how you guys can actually change the course of investment. आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हो by trading in these currencies. With no further ado, I'll start with explaining what exactly is blockchain. So, as simple as that. Nothing fancy. Let's start into what Google says with आपका blockchain है क्या? A system in which a record of transactions made in Bitcoin or other cryptocurrencies are maintained across several computers that are linked to peer-to-peer network. ये सिंपल डेफिनेशन है गूगल की. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को उठाते हैं और इसके छोटे छोटे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सिस्टम क्या है. जब ये आपको ओवरऑल बोला जा रहा है कि ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, तो सिस्टम होता क्या है? लेट्स लुक इनटू दैट. उसके अलावा ये स्पेसिफिकली बोलता है अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस होते क्या है वो हमें पता है बेसिकली, बट व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन इन द रियल वर्ल्ड? नाउ इट सेज दैट अगर वो ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज में होते हैं, देन वी do a quick deep dive. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन इज बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज. व्हाट अबाउट अदर ट्रांजैक्शंस? उसका ब्लॉकचेन पे क्या इंप्लीकेशन है? इज इट स्टिल अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन या फिर वो टोटली डिफरेंट चीज है? Then the most important part of it, that these transactions are maintained on several computers. Then we deep dive and understand कि ये several computers का क्या मतलब है when this definition strongly talks about specific of several computers. Why we need several computers? दुनिया अच्छी चल रही है. Why do we need several computers to keep a track of transactions? Then we finally talk about peer-to-peer network. Why peer-to-peer network is a critical part of blockchain? ये peer-to-peer network है क्या? And ये blockchain का integral part क्यों है? That is where our motive is. So this is again repeating a system in which record of transactions made in Bitcoin or another cryptocurrencies are maintained across several computers that are linked to a peer-to-peer network. ये है हमारा blockchain. एक काम करते हैं, जो अभी डिस्कस किया उसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं विद दीज डिफरेंट कीवर्ड्स जो हमने पुरानी डेफिनेशन से उठाए हैं. लेट्स स्टार्ट विद लुकिंग इट व्हाट आर सिस्टम्स. ये हमारे सिस्टम्स हैं क्या? जस्ट एज बेसिक एज सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपको कोई एक सिस्टम देखना है, अगर एक आउटपुट है आपका, एक इनपुट है, कुछ फ्लो हो रहा है, दैट इज सिस्टम. अगर आप एक बैंक में जाते हो, आप जाते हो अपना पैसे जमा करते हो, आपकी पासबुक अपडेट होती है, दैट इज सिस्टम. एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमर्शियल बैंकिंग को सपोर्ट करता है इज अ सिस्टम. आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, आप ऑर्डर करते हो, दैट इज ऑल्सो सिस्टम. एनीथिंग विच इज सॉल्विंग
end goal with some inputs is known as a system. Basic. As simple as that. एक पूरा closed system. Now, that is where it gets very specific to blockchain. Next part is understanding a record of transactions. आप लोग बैंकों पे जाते हैं, जैसे let's take the previous example. आप बैंक पे गए, आपने अपने पैसे जमा करवाए. That is what you are making one transaction. आपने पैसे जमा करवाए. बहुत सारे फाइनेंस बैकग्राउंड से लोग उसको डेबिट क्रेडिट से रिलेट कर पाएंगे. ऑन द अदर साइड यू कैन थिंक अबाउट ट्रांजैक्शन कि मैं पैसे अपने भाई को ट्रांसफर कर रहा हूं. देन यू अगेन सी द ट्रांजैक्शन विच आई मेड थ्रू दिस. मेरे अकाउंट से पैसे कटे, मेरे भाई के अकाउंट में क्रेडिट हुए. दैट इज ऑल्सो वन ट्रांजैक्शन. सो अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन्स. मैं इन चीजों को डिफरेंटली बता रहा हूं, but the biggest part lies in understanding blockchain is कि ये all together tie कैसे होता है. So now moving on to the next part of the definition, which talks about recording the transaction on Bitcoin or cryptocurrency. एक काम करते हैं, आप Bitcoin और डिजिटल करेंसीज को अभी के लिए सिंपल एक करेंसी मान लो, ठीक है, बट वो डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट इन द सेंस कि आप उसे देख नहीं सकते, वो डिजिटल है, ठीक है. आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, आप उसे पेटीएम का कुछ कंपोनेंट मान लीजिए अभी के लिए, बिफोर वी गो इनटू डीप डाइव टू स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट इट मींस. नाउ अभी तक हमने ये समझ लिया कि ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं तो क्या होता है, बस पैसे भेजने की जगह भाई को मैंने बिटकॉइन या कोई और डिजिटल करेंसी भेजी है. दैट इज व्हाट अ ट्रांजैक्शन इन बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी मींस. नाउ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन इज what does it mean by storing it on a several computer and peer-to-peer network. इसको आप बहुत बेसिक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोच लो कि अभी के लिए कि इंस्टेड ऑफ यू मेकिंग द ट्रांजैक्शन, बैंक कीपिंग द लेजर रिकॉर्ड जो आपकी पासबुक और एप्स पे रिफ्लेक्ट होता है, हर एक इंसान पे दुनिया में आपके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, जो कि फॉर श्योर सिक्योर्ड होगा, आपका क्रिप्टेड एनक्रिप्टेड होगा. बट यस, आप ये मान लो एक बार के लिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, वो दुनिया के हर एक कंप्यूटर पे है. That is what a several net computer and a peer-to-peer network means. This is the broad idea or a deep dive of what exactly does it mean in terms of blockchain. और ये blockchain की definition का quick overview था. Now, there are two basic components जो बहुत important है when we think about blockchain and what makes it very different. और उनको deep dive करेंगे हम specifically समझने में. एक तो कि स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के लिए सिस्टम्स क्या होते हैं, देन जो उसको अलग करता है हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से, दैट इज योर सेवर कंप्यूटर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क. दिस इज अनदर कंपोनेंट वेयर वी आर गोइंग टू डीप डाइव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉकचेन एंड हाउ एग्जैक्टली इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन जो हम आज रोज करते हैं. हम लोग जाके बाहर मैकडॉनल्ड्स में लेते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे कटते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं. वो उससे डिफरेंट कैसे है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लुकिंग इनटू सिस्टम्स क्या है. सिंपल बात है, हमने सिस्टम को बोला था कि एक एंड गोल है और उससे ओवरऑल आपकी सारी चीजें चल रही हैं, दैट इज अ सिस्टम. बट थिंक अबाउट इन आवर केस स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ डिजिटल सिस्टम. अभी के लिए आप इसको एक पूरा इकोसिस्टम मान सकते हो जो डिजिटली कंट्रोल्ड है, रेदर देन एक आपकी बैंक. तो आपको कोई ब्लॉकचेन का ऑफिस नहीं दिखेगा, आपको कोई बिटकॉइन का ऑफिस नहीं दिखेगा, बट एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस पूरे सिस्टम को केटर करता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर ब्लॉकचेन्स, अभी आप ये समझ सकते हो उनको कि दैट इज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑपरेट होते हैं, जो कि एक एंड मोटिव के लिए काम करते हैं, दैट इज टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस और उनकी डिटेल स्टोर करवाना थ्रू डिफरेंट नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स और डिफरेंट नेटवर्क ग्रुप्स. ये आइडिया था बेसिक्स अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर सिस्टम्स स्पेसिफिकली विद द लेंस ऑफ ब्लॉकचेन्स. Moving on to the next part, let's do a quick deep dive on what does mean on recording on several network and peer-to-peer network. ये हमने पहले भी डिस्कस किया, but this is where I want to spend most of the time. ये क्रक्स है, ये सेट करेगा आपका बेस when you think about learning blockchain, crypto and trading in currencies like Bitcoin, Ethereum, etc. So this is where I want to spend most of my time on कि ये है क्या एंड हमारे को इसकी जरूरत क्यों है. सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, व्हाई डू वी नीड अ सिस्टम लाइक दिस, और इस सिस्टम के पर्टिकुलरली फ्लॉज क्या हो सकते हैं आगे चलते हुए फ्यूचर में. ओके,
तो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली कि आप सोचो अभी आपके रिकॉर्ड सारे बैंक पे हैं. बैंक इज द वन हु कंट्रोल्स आप दिन में कैसा कितना पैसा निकाल सकते हो, आप दिन में कितना पैसा एक बार में एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, कितना जाकर आप डायरेक्ट बैंक से ले सकते हो, कितने की आपकी लिमिट होगी क्या चीजों पे. ऊपर से सारे रिकॉर्ड एक सेंट्रल यूनिट पे हैं. आपकी बैंक पे आपके सारे रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन है. आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी बैंकों ने, इंक्लूडिंग येस बैंक जो इंडिया में अभी केस हुआ था, वहां पे लोगों को पैसे निकालने पे पाबंदी लगा दी गई थी. पीपल वर नॉट अलाउड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर ओन अकाउंट्स बिकॉज द सेंट्रल पार्टी और द बैंक वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग. एक पर्टिकुलर बैंक को सफर कर रही थी उस पर्टिकुलर एरिया में. एंड दैट इज वेयर इट केम एज अ नीड पर्टिकुलरली कि हमारे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए. हम लोग बहुत डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हर एक इंसान के पास राइट होना चाहिए. तो एक सेंट्रल पार्टी क्यों गवर्न करे इस टाइप की चीजों को, जो कि एक मॉनिटरी इंसान का राइट है. एंड दैट इज वेयर इट कम्स very differently when we talk about a centralized system versus a decentralized system. And blockchain was the root when we talk about decentralized system. एक काम करते हैं, बैंक हटा देते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन स्टोर करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग डिफरेंट हब स्पॉट्स बनाएंगे जहां पे आपके ट्रांजैक्शन हर एक कंप्यूटर पे स्टोर होंगे. दैट इज व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट इस डेफिनेशन में सेवरल नेटवर्क और सेवरल कंप्यूटर मीन्स कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया, लेट्स से दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने भाई को पैसे भेजे और वो पैसे भेजने के बाद इंस्टेड ऑफ बैंक मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड आपका बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड है. तो बैंक इज नॉट द वन हु इज कंट्रोलिंग द एंटायर ट्रांजैक्शन. आपका बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा है. नाउ वैलिडेशन एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू दीज मेनी कंप्यूटर्स. अब अल्टीमेटली कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है who would be controlling these transactions. So now you are the owner of what happens there. This is where the root of this entire thing brings in. कि आपका decentralized system, जहां पे you are more democratic, you are trying to build a system जहां पे एक central party की जगह बहुत सारे different network और computers हैं जो इस transactions को facilitate करते हैं. मैं बहुत transactions बोल रहा हूँ. And the idea was to define the definition जो Google आपको एक देता है. But reality, blockchain की applications are not limited to transactions. अगर आप जाएंगे, स्टडी करेंगे, and that is what we are also going to cover in this particular program, where we want to talk about कि भाई transactions is just one application of blockchain. Blockchain आजकल दुनिया में बहुत चीजों के लिए यूज हो रहा है. Anything in a structured or unstructured way आपको डेटा स्टोर करना है, blockchain. Financial, digital finance, DeFi जो बोलते हैं बहुत ज्यादा है क्या ये? That is also we are going to cover. That is all the applications of blockchain. अभी के लिए आप इतना समझें कि ब्लॉकचेन एक सिंगल यूजर या सिंगल पार्टी जैसे बैंक्स उनसे पावर छीन कर सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. That is what the root, the formation of this entire blockchain technology is. अभी तक अगर मैं पूरी चीज को समराइज करूं और सारांश लाने की कोशिश करूं तो इट इज एज सिंपल एज एक पर्टिकुलर सिस्टम है हमारा ब्लॉकचेन, जहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी कर रहा है डिजिटल करेंसीज में अभी के लिए मान लीजिए, तो वो सारे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पार्टी स्टोरिंग इट, एक सिंगल बैंक को स्टोर करने की जगह आप सबके नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. उससे क्या होगा कि जो आपकी पावर है इन सेंट्रल अथॉरिटीज पे जैसे बैंक वगैरह, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी. एंड दैट इज वेयर अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन एंड्स. ये बहुत बेसिक आइडिया था आपका कि ब्लॉकचेन है क्या. बट बिफोर वी गो एंड डीप डाइव इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, आई वांट यू टू गिव क्विक आइडिया ऑन फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स जब आप ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे. And I'm going to be very specific on this area about blockchains. हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. That is what our core is. कि हम लोग पूरी चीज को एक दिन में समझने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर 1 मिनट या 15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. नाउ जब हमने समझ लिया कि ब्लॉकचेन ओवरऑल होता क्या है, कुछ कीवर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है. ये कीवर्ड्स आपकी नींव रखेंगे इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट व्हेन वी गो इनटू क्रिप्टो एंड स्पेसिफिकली डिजिटल करेंसीज. Now the first part is what is block and what is blockchain. ठीक है, अभी तक हमने इतना सेटअप कर लिया था कि ब्लॉकचेन एक सिस्टम है जहां पे आपके डिफरेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट हो रहे हैं और ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क पे है रेदर देन वन सेंट्रल पार्टी. अब क्या हुआ, अब आप बात करते हैं ब्लॉक और ब्लॉकचेन की.
ये एक तरीका है बोलने का। जैसे आप मान लीजिए मैंने अपने भाई को 100 रुपए भेजे, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ ब्लॉक। अब क्या हुआ कि भाई ने वो पैसे कहीं और भेजे आगे, दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन अनदर ब्लॉक। अब इन ब्लॉक को कनेक्ट करना और इस पूरे पाथ को जर्नी बनाना, दैट इज व्हाट फॉर्म्स ब्लॉक चेन। तो आपका एक ब्लॉक था जहां पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी अबाउट द ट्रांजैक्शंस, और आगे चल के व्हेन यू कनेक्ट दीज ब्लॉक्स ऑल टुगेदर फॉर्म्स अ ब्लॉक चेन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दुनिया इवॉल्व हो चुकी है। दुनिया इतनी इवॉल्व हो सकती है कि इस ब्लॉक में आप ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन के अलावा बहुत चीजें डाल सकते हो। एनएफटी इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इट कि आपने एक पूरा यूजर की आर्ट उस ब्लॉक में डाल दी एज अ डेटा। अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये किसको बिलोंग करता है। Now that is where the application gets very interesting, and that is where the future could actually change if this is implemented in a very very good way. Now the next part is a blockchain का basic समझ में आ गया हम लोगों को। Let's move on to the next part and try to understand what is ICOs, tokens and coins। ठीक है, आपने आईपीओ के बारे में सुना है। कोई भी कंपनी पैसा रेस करती है, जनता से पैसा मांगती है, दैट इज रन थ्रू आईपीओ। से भी हमारे में आईपीओ करवाता है। बहुत रिसेंट आईपीओ आए हैं, आपको पता ही होगा। IRCTC was a good example, but at the same time we had IPOs which was mainly about your life insurance companies, your LICs and everything. So we have these many IPOs जो आते रहते हैं इंडिया में। सेम चीज सोचिए, कोई डिजिटल करेंसी पे कंपनी काम कर रही है, उसको रेस करना है पैसा, तो पब्लिक मार्केट में डिजिटल करेंसीज को रेस करने का तरीका होता है आईसीओस। दैट इज द आइडिया ऑफ आईसीओ। देन मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ टोकन्स। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि आप कॉइन्स को खरीद सकते हो इन फ्रैक्शंस। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा टोकन। लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूं 1 बिटकॉइन, अब एक बिटकॉइन में मल्टीपल टोकन हो सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीदता, मैं कम भी खरीद सकता हूं। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज टोकन। नाउ बात करते हैं कि टोकन और कॉइन्स में क्या डिफरेंस है। अल्टीमेटली टोकन और कॉइन सेम चीज है। ठीक है, अब लेमन टर्म्स में पूछोगे तो हर कोई इंसान बोलेगा सेम चीज है टोकन और कॉइन्स। ओनली स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज कि कॉइन जो है वो आपके उसी नेटवर्क का पार्ट है, ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, जिसका वो टोकन है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली, बहुत टिपिकल लैंग्वेज हो गई, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस विद एग्जांपल कि आपका इथेरियम जो है इज काइंड ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नेटवर्क है ब्लॉकचेन का। एंड नाउ योर कॉइन विच इज ETH, इथेरियम कॉइन, is exactly same using the same protocol which is built on this Ethereum blockchain network, इसलिए वो कॉइन कहला रहा है। बाकी जो आपकी करेंसीज हैं जो कि इथेरियम नेटवर्क ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करती हैं, बट दे आर डिफरेंट, वो इथेरियम कॉइन नहीं है, लाइक देयर करेंसी इज नॉट इथेरियम, बट दे वर्क ऑन द सेम टेक। उनकी जो यूनिट्स होंगी वो टोकन्स होंगी। दिस इज अ स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस। अभी के लिए आपको उस ग्रैनुलरिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ब्रॉडली अभी आइडिया लग रहा है, इट्स गुड इनफ, क्योंकि हम इसको बहुत बार डिस्कस करेंगे और दैट इज वेयर वी वांट टू एम्ब्रेस द आइडिया कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको रीइंफोर्स करेंगे एज वी गो इनटू द जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ हैश फंक्शन एंड हैश रेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट मैं अभी बेसिक्स लूंगा क्योंकि वंस वी गो इनटू द आइडिया ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड ट्राई टू इवैल्यूएट डिफरेंट डिजिटल करेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। हैश फंक्शन कुछ नहीं है, मैंने बताया, आप ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट चीजों के ट्रांजैक्शंस आप लगते हो एक जगह पे, ब्लॉक्स रखते हो, वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक इंक्रिप्टेड है, राइट। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो बिना इंक्रिप्शन के हर जगह विजिबल हो, या फिर कोई भी चीज बिना इंक्रिप्शन के हर जगह विजिबल हो। आप चाहेंगे कि आपका पासवर्ड जो है वो ग्लोबली हर एक कंप्यूटर पे पड़ा हो, नहीं, राइट। तो दैट इज व्हाट द इंक्रिप्शन कम्स इन, एंड हैश फंक्शन इज वन वे ऑफ एक्चुअली डूइंग दैट। तो एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, मतलब आप सिंपल मान लीजिए कि अगर मैं आपको कुछ यूनिट दे रहा हूं, एक फंक्शन है जो उसको एक रैंडम चीज में कन्वर्ट कर रहा है, उसका मीनिंग सेम है जो इनपुट दिया था। लेट्स से माय नेम इज शुभम, मैंने उस फंक्शन में डाला, उसने अल्फा बीटा गामा बोल दिया, तो अल्फा बीटा गामा का मतलब है माय नेम इज शुभम। एक जो फंक्शन है वो अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट कर रहा है माय नेम इज शुभम वाली लाइन को। दैट इज व्हाट अ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन इज। इट इज वेरी मच नीडेड हियर, क्योंकि आप लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसलिए हैश फंक्शन कुछ नहीं, एक फंक्शन है जो उसको कन्वर्ट करता है इन अ क्रिप्टोग्राफिक वे। नाउ
हैश रेट इज वो कितना फास्ट करता है. The basic idea of understanding hash function and hash rates is to understand the efficiency of the protocol. आपको एंड में पता होना चाहिए कि जब आप डिफरेंट टैग को इवेल्युएट कर रहे हो, क्योंकि एंड में आप डिजिटल करेंसीज में क्या इवेल्युएट कर रहे हो उनके वैल्यू के लिए, रिलेटिवली टैग कितना बेटर है, आपका टैग जो है वो कितना बेटर है कंपेयर टू अदर थिंग्स अराउंड हियर. विद दिस पर्टिकुलर थिंग आई गेस आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है. मोर ओवर आपको ये आइडिया लग गया होगा आज कि ये बेसिक टर्म्स क्या है. मैं ये नहीं चाहूंगा कि इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए ब्लॉकचेन है क्या, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए कि आपका ये है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल से. अगर उतना हो गया है, गुड एनफ. दैट इज व्हाट आई थिंक आई हैव डन माय जॉब इन टीचिंग इन दीस 20 odd minutes. Final thing before I leave, this is the line quoted by CEO of IBM. Anything that conceive of a supply chain, blockchain can vastly improve its efficiency. It doesn't matter if it's people, number, data, money. Simple as that. The sweetness of this is कि applications बहुत वेरिड है ब्लॉकचेन के, बहुत बहुत वेरिड है. इस कोर्स में फोकस रहेगा, वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शंस, but we'll give you a flavor of how exactly these applications can go beyond these as we go through the course. Stay tuned, follow us, and let me know if you have any other questions. Feel free to bring me. Always happy to answer your question as we go through this course. Thank you.